tutorial part 2. Last time we saw and learned how do we create Facebook ad account, how we created ad sets and ad campaigns. We also learned how to place filters on what kind of public or what kind of audience you want to target to. So this time we will go to part 2, where we will learn how to track and set up the campaigns, how to create the live campaigns, and how to set up Facebook catalogs. At the end, after all the work that we are doing, we obviously want to measure how our ads are performing, what kind of metrics we should look at while running the Facebook ads. So let me invite our speaker, Mr. Manoj Gupta, who is also CEO of Craftsvilla and running live ad campaigns on Facebook. Thank you, Monica. So today, basically, we'll be talking about a lot more detail about tracking and catalog setup. Pehle, if you look at if you have attended the first part, the part 1, we saw what ad account is, what ad set is, what a campaign is, how to set up these. We pretty much set up करा था अपने. We set up everything. This time we will going to do the next phase, which is the how to track your, which is very important, how to track your Facebook ads. How कैसे setup होता है tracking Facebook में. और इसका example we will be showing it कि कैसे आप इसको track कर सकते हैं in Facebook. और कैटलॉग कैसे सेटअप करते हैं, हाउ डू यू सेटअप ए कैटलॉग इन फेसबुक, बिकॉज इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, इट्स इम्पॉर्टेंट मस्ट टू इफ यू आर रनिंग अ फेसबुक ad campaign, right? So without much ado, upon will directly enter into this session. If you have any questions, किसी को भी question है, you can ask the question. I will happy to answer this question. Any questions you have related to even previous session का कोई भी question हो तो I am happy to answer. And in this session, if you have any questions, you definitely can put the question in the Q&A part. तो एक बार previous का review कर लेते हैं. Let's just review the previous part. Basically we introduce Facebook ads, ad account क्या होता है, campaign, ad set, ad क्या होता है, फिर अपन ने सेटअप किया था पर्सनल फेसबुक अकाउंट, बिजनेस पेज क्रिएट किया था, देन वी क्रिएटेड अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट. प्रीटी मच ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आपको करना ही है बिफोर यू रन ए फेसबुक एड, तो सब अपन ने किया था इन द फर्स्ट सेशन. जस्ट रिव्यू ऑफ द स्लाइड्स. क्या था एड अकाउंट तो हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, आपकी डिफरेंट कंपनी होती है, उसके अकाउंट कर सकते हैं. फिर कैंपेन आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर एड सेट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर एड क्रिएट कर सकते हैं. ये आपका हायरार्की है. जो भी आप एड कैंपेन आप क्रिएट करते हैं फेसबुक में, तो ये हायरार्की आपको, इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, you will have no issue in understanding Facebook. और ये सब prerequisites अपन ने we went through this कि क्या क्या चाहिए होता है, and we actually going through this right now step by step. फिर ये steps थे कि आप पर्सनल FB अकाउंट क्रिएट करें, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करें, और फिर आप ओपन द बिजनेस मैनेजर अकाउंट. ये 3 स्टेप किए थे. इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. इस सेशन को आप लाइटली मत लीजिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज ऑल अबाउट ट्रैकिंग एट कैटलॉग. विदाउट ट्रैकिंग इन कैटलॉग योर फेसबुक एड्स आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म नहीं करेंगे और फिर फ़ायदा नहीं है आप फेसबुक एड्स करें. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ट्रैकिंग इन कैटलॉग से हमारा 4th सेशन कनेक्टेड रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ do you measure the Facebook performance, right? Yeah, so basically just a little bit about Plotch, क्योंकि ये Plotch ये सेशन Plotch के थ्रू है.
your Plotch is an e-commerce ERP. It's a ERP which just got launched in India. It's built for e-commerce. Product को people से connect करता है. जो भी e-commerce में आपको चाहिए इस Plotch में है. मोबाइल ऐप से लेके चैटबॉट से लेके कंटेंट मैनेजमेंट, कुछ भी आपका कुरियर है, पेमेंट गेटवे है, ऐप नोटिफिकेशन है, कुछ भी है वो सब आपका इधर प्लॉट में मिलेगा आपको. और उसके अलावा जो भी परचेज ऑर्डर, वेयर हाउस मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ और भी रिलेटेड आपका बैकएंड का है वो भी आपको मिलेगा. सो कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कि व्हाई इज ट्रैकिंग इम्पॉर्टेंट, राइट? क्यों ट्रैकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ट्रैकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें परफॉर्मेंस चाहिए होता है. एड्स करते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर बजट रहता है, उसमें हमारा इतना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए. तो इसलिए ट्रैकिंग, वो अपन को ट्रैकिंग बताता है. ट्रैकिंग से ही फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है. ट्रैकिंग से ही फेसबुक को पता चलता है कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है, किसको और दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है ऐड को, राइट? सो मेजरमेंट इज an important part of tracking. कि कौन आया था, who came to the ad, right? And how they came, कहाँ से आए थे, where did they come from? Of course, because the Facebook, so most of the ads are running on Facebook, so they come from Facebook. Or Google, it can be from YouTube, it can be from a page, can be app, right? So इसमें so it's very important where they came from, because it tells us कि हमारा ad कहाँ दिखाता, तो कहाँ पे हमें ad और दिखाना चाहिए. कभी कभी होता है कि YouTube से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है, और या फिर आपको फेसबुक में ही मोबाइल ऐप फेसबुक के उसमें ज़्यादा मिल रहा है rather than वेबसाइट से. So it's an important thing. Then what they did, क्या किया था, what they did जब वो किसी वेबसाइट या ऐप पे आए थे, राइट? आप ऐड देखते हैं, ऐड क्लिक करते हैं और फिर वेबसाइट या ऐप पे जाते हैं किसी जो भी एडवर्टाइजर है उसके, तो वहाँ पे क्या किया था, क्या सर्च किया था, कि प्रोडक्ट देखा था, कि परचेज किया था, ऐड टू कार्ट किया था, चेकआउट किया था, पेमेंट मेथड डाला था, विश लिस्टिंग की थी, क्या किया था, ऑल दैट इज ट्रैक्ड बाय फेसबुक. And where they did, right? जैसे कहाँ पे किया, did they click at your recommended products, did they click on like top selling products, right? So where they did and when they did, कि ये कब हुआ था, लास्ट 30 डेज में हुआ था, 1 डे में हुआ था, लास्ट 7 डेज में हुआ था. सो एवरीथिंग इज ट्रैक्ड. आप अगर किसी वेबसाइट फेसबुक से ऐड से अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो फेसबुक क्या क्या ट्रैक करता है वो आपको यू कैन नॉट इमेजिन, राइट? And that's for every publisher or any advertiser, advertising platform, they track a lot. This is a very very important when you're running digital campaigns. और यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो आपको, अगर आप डिजिटल कैंपेन नहीं करते हैं, मान लो आप टीवी पे देते हैं या फिर रेडियो पे देते हैं, वहाँ से आपको इतना डेटा नहीं आ सकता. यू कैन नॉट गेट दैट मच डेटा which you can get in a digital campaign. Now अब फेसबुक को ये पता है कि आप एक ऐड से क्लिक करके वेबसाइट पे गए हो, आपने क्या क्या किया, क्या देखा, क्या नहीं देखा, और उनको ये भी पता है क्योंकि आप because they most of the people are logged in either in their mobile app, Facebook mobile app और Facebook वेबसाइट, राइट? तो उनको पता है कि ये जेंडर, एज और उसका लोकेशन क्या है, राइट? अगर मनोज गुप्ता का फेसबुक पेज लॉग्ड इन है और मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, जैसे क्राफ्ट्सविला पे जाता हूँ, तो फेसबुक को पता है कि मनोज गुप्ता मेल है, एज 40+ है, लोकेशन मुंबई है, right? तो ये उनको पता है. तो प्रोफाइल किया उन्होंने, मेजर किया, आप उनको ये सब पता है कि मेरे बारे में, तो अब वो टारगेट करेंगे. तो वो आप मुझे वो दिखाएंगे जो मैंने देखा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्राफ्ट्सविला पे गया और मैं मेंस के कुर्ता देख रहा हूँ तो वो मुझे कुर्ता दिखाएंगे और दिखाएंगे कुर्ता, राइट?
अब ये सब डेटा कैसे जाता है फेसबुक को, राइट? तो ये बेसिकली इस स्लाइड मैंने पिछली बार भी प्रेजेंट की थी. आई एम शेयरिंग इट राइट नाउ. डज एनीवन एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है ट्रैकिंग के बारे में विच यू वांट टू आस्क एनी ऑफ यू? ठीक है. तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि ट्रैकिंग होती है, आप ऐड पे जाते हैं, ऐड का जो भी ट्रैकिंग है आप उससे वेबसाइट पे या ऐप पे जाते हैं, तो फेसबुक एसडीके या फिर फेसबुक पिक्सल से आपका ट्रैकिंग होता है, और फिर वो एनालिटिक्स में जाता है फेसबुक के, और वहाँ से कैटलॉग लेके फिर आपको दोबारा से प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं. तो मान लो आपने एक साड़ी का या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर फ़ोन का आपने ऐड देखा, उस पर आप क्लिक गए, तो आप क्लिक करके वेबसाइट पे गए, उससे आपका पूरा ट्रैकिंग हुआ, ट्रैकिंग फेसबुक के पास गया, फेसबुक ने देखा कि आपको एक्चुअली फ़ोन ज़्यादा पसंद है, तो वो फेसबुक में जो उनका कैटलॉग है उधर से आपको उस प्राइस रेंज या उस तरह के फ़ोन्स दिखाने लग जाएगा. सो यू विल स्टार्ट टू सी लॉट मोर products which are similar to your taste. What you like they will show, what you don't like they will not show. इसी तरह से ही ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्योंकि अगर आपको वो दिखाया जाएगा जो आप लाइक करते हैं, सो यू आर मोर लाइकली टू परचेज. सो इसलिए इस तरह से फेसबुक का फ्लो होता है. अब फेसबुक में कुछ ट्रैकिंग के स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये आपको जो हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, एड परफॉर्मेंस, तो हम फनल की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट फनल. सो दिस द फनल दैट वी विल टॉक अबाउट. तो फेसबुक क्या क्या ट्रैक करता है? फेसबुक ट्रैक करता है जैसे पेज व्यू, कि आप गए तो आपका एक पेज व्यू हो गया है. कुछ भी आप पेज खोलेंगे कहीं पे भी, या ऐप में आप कोई भी स्क्रीन खोलेंगे तो आपका एक पेज व्यू रजिस्टर हो जाएगा. अगर आप सर्च करेंगे तो वो एक सर्च इवेंट की तरह रजिस्टर हो जाएगा. इफ यू ओपन एनी प्रोडक्ट या कैटेगरी पेज, तो इट विल बी ए व्यू कंटेंट इवेंट. उसके बाद अगर प्रोडक्ट के बाद आपने कोई कार्ट में डाला, तो वो ऐड टू कार्ट वाले इवेंट में इवेंट फायर हो जाएगा, वो इवेंट फेसबुक के पास जाएगा. अगर उसके बाद आप इनिशिएट करते हो चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट या चेकआउट क्लिक करते हैं, तो इनिशिएट चेकआउट का इवेंट फेसबुक के पास चला जाएगा. उसके बाद अगर आप उस प्रोडक्ट को फाइनली परचेज कर लेते हैं, तो वो फनल का एंड हो जाता है कि आपने परचेज कर लिया है. तो इस तरह फेसबुक आपको पूरा ट्रैक करता है कि आपने पेज देखा, फिर सर्च किया, फिर प्रोडक्ट देखा, फिर you added to cart, you initiated checkout, then you finally purchased. And each of these event, जहाँ जहाँ ये इवेंट हो रहा है, उस पे आप कस्टमर्स या यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं. तो फेसबुक में ये भी है कि मुझे सिर्फ ऐड टू कार्ट, जिन जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है उनको ही ऐड दिखाना है. सो दैट आल्सो यू कैन डू, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग ट्रैक. कुछ क्वेश्चन है? डू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन द इवेंट्स? डू अंडरस्टैंड ऑल द इवेंट्स? कुछ क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू आंसर. सो हाउ डज फेसबुक ट्रैक, राइट? फेसबुक कैसे ट्रैक करता है, ये पहले भी मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, एंड इसमें अपन डिटेल में जाएंगे कि फेसबुक ट्रैक करता है. वेबसाइट पे एक पिक्सल आईडी होती है, उससे ट्रैक करता है. और ऐप में फेसबुक का एक ऐप बनाना पड़ता है, फेसबुक का एक एचडीके इंटीग्रेट करना पड़ता है. उन दोनों के लेके फेसबुक पे आपको मोबाइल ऐप, अगर आपका मोबाइल ऐप है तो उसमें वो इस तरह से ट्रैक करता है. वेबसाइट पे सिंपल है, उसमें आपको एक पिक्सल डालना होता है. वो पिक्सल कैसे डालते हैं वो मैं भी दिखाऊंगा. आई शो इट यू हाउ यू ऐड अ पिक्सल on a website and also on the app. So what is a Facebook pixel? It's a long number. It's a number like this. ऐसा नंबर है जो आप बेसिकली फेसबुक का पिक्सल आप ये डालते हैं, तो उससे आपका पूरा ट्रैकिंग होता है कि ये इस एड अकाउंट का
कस्टमर है जो वेबसाइट पे आया है। सो एवरी टाइम कस्टमर विजिट्स द वेबसाइट, फेसबुक इस पिक्सल पे ये एक एग्जांपल है कि इस तरह का डेटा वो फेसबुक अपने आप को भेजता है कि किसी ने अगर प्रोडक्ट देखा है तो प्रोडक्ट उसका आएगा कि उसने प्रोडक्ट देखा है, उससे कौन सा प्रोडक्ट देखा है उसका आईडी आएगा, और उसका वैल्यू कितना था, उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या था, उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, और उस प्रोडक्ट की और करेंसी क्या थी। तो ये सब फेसबुक जब भी आप प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पे ये ट्रैकिंग हो रही है, तो ये फेसबुक अपने आप को ये डेटा भेजता है। इसके अलावा बैकग्राउंड में और भी डेटा भेजता है, जिससे कि आप उनको पता लगता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप फेसबुक पे हैं कि नहीं है, वो सब आपको वो पूरी तरह ट्रैक करते हैं। तो दैट्स हाउ दे नो इट्स दैट यू इट इज़ यू हु इज डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। तो ये अपना पिक्सल पिक्सल है। अभी पिक्सल व्हाट हाउ नाउ नाउ दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस कि फेसबुक पिक्सल है, नंबर जनरेट कैसे होता है, हाउ डू आई गेट दिस नंबर, हाउ डू आई पुट इन माय वेबसाइट, ये सब क्वेश्चंस naturally comes. So we'll answer that. So last time, as I said, uh, if you look at this business account, right? So how did we get here? We said you can get here very easily at business or facebook.com, right? इससे इस पे आप जाएंगे तो आपका ये आप बिजनेस अकाउंट में आ जाते हैं। ये अपन ने सेटअप किया था, वी सेटअप लास्ट टाइम दिस अकाउंट, बिजनेस फेसबुक अकाउंट, बिजनेस मैनेजर अकाउंट वी सेटअप, एंड यू गो टू बिजनेस सेटिंग्स। अगर आप बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे तो वी लास्ट टाइम अपन ने देखा था यहाँ पे वी लुक दैट we created the users and everything. यहाँ पे if you go to data sources, there are a lot of other things, but if you go to data sources, catalogs and pixels, ये दो चीज आपको वहाँ दिखेंगी, और ये सेशन इन दोनों के बारे में ही है। It's all about these two aspects, the topics of Facebook, right? तो कैटलॉग के बारे में अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पर पिक्सल पे जाते हैं। पिक्सल पे you can add a pixel. यहाँ पे already I have added 2 pixel, but you can add as many pixels as you want. तो आप ऐड करेंगे, आप बोलेंगे कि ये मेरा पिक्सल लेट्स से कोई तो फूड वेबसाइट पिक्सल है मेरा। आपका कुछ भी वेबसाइट है उसका नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप चाहे तो वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल देते हैं, lodge.ai डाल। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको पिक्सल सेटअप करने का यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देंगे, राइट? जैसे यहाँ पे लिखा है सेटअप पिक्सल नाउ। तो आप ये 3 वेज हैं जिससे आप सेटअप कर सकते हैं, राइट? अगर आपका कोई पार्टनर इंटीग्रेशंस है, जैसे शॉपिफाई आप यूज़ करते हैं या फिर वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, राइट? अगर आप लेट्स से यहाँ पे शॉपिफाई है तो आप शॉपिफाई क्लिक, और फिर आप इसके थ्रू आप शॉपिफाई पे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। देयर इज अनदर वे, एक और वे है जो आप मैन्युअली कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दोबारा से एक पिक्सल बनाता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप पिक्सल बनाते हैं तो आप एक मैन्युअली भी आप कोड ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिक्सल एक आईडी है, जो मैंने बोला था कि पिक्सल आईडी जनरेट होती है, ऐसे ही
डिफरेंट आप पिक्सल बना सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए। एक वेबसाइट पे एक ही पिक्सल चाहिए होता है। प्लीज डू नॉट क्रिएट 2 pixels for one website 1 pixel, so usually you will see only 1 pixel being used by most of the people, but if you manage multiple websites you can add multiple pixels here. Let me try again that pixel. Yeah, so let's say I get it to pixel 2, and this time also I say this for plot.ai. Lucky I am putting the website, but you can always change it later. Doesn't need to be for this. So first we said कि अगर Shopify आप यूज़ करते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आपका खुद का वेबसाइट है, आप Shopify नहीं यूज़ करते या WordPress नहीं यूज़ करते, तो आप इसको क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे कोड दिख जाएगा। ये कोड को आप कॉपी करके आप अपने डेवलपर को भेज सकते हैं, और वो इस कोड को आप उनके HTML जो हेडर सेक्शन है वहाँ डाल देगा। तो इस तरह से आपका ये सेटअप हो जाएगा आपका पिक्सल। अगर आप शॉपिफाई यूज़ करते हैं तो आप शॉपिफाई जैसे स्टोर है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिखेगा। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस दिखेगा, और वहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे गूगल एनालिटिक्स आप डाल सकते हैं कोड, और यहाँ पे फेसबुक पिक्सल आप डाल सकते हैं। तो आप वहाँ जैसे आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, जैसे अपन यहाँ फेसबुक से किया था कि आप शॉपिफाई पे जा सकते हैं, आप शॉपिफाई से फेसबुक पे भी जा सकते हैं, और वहाँ से भी आप इसको पिक्सल को सेटअप करें। अगर आप शॉपिफाई से फेसबुक पे जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली शॉपिफाई एक पिक्सल क्रिएट कर देगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे उसने ये मैंने पहले कर लिया था, बट आप यहाँ पे जाके आप एक पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी ट्राई टू डिस्कनेक्ट दिस पिक्सल and see if I can again connect it, right? So now it's showing me, for example, I'm connected, so it's showing me all these pixels. I can connect any of the pixels to this, right? So it connected my pixel, right? So automatically आपका now अगर आप अपने Shopify वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो ट्रैकिंग करने लग जाएगा। नाउ मैं आई विल ट्राई टू शेयर, मैं आपको आई विल शो इट टू यू हाउ दिस ट्रैकिंग इज डन ऑन ए लाइव वेबसाइट। जैसे आप ये शॉपिफाई वेबसाइट है, इधर आप अगर आप जाते हैं, आपका कोई भी शॉपिफाई का वेबसाइट है, तो आप अगर आप जाते हैं तो आप अगर प्रोडक्ट को खोलेंगे तो वहाँ पे आप ट्रैकिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें पिक्सल हेल्पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं ट्रैकिंग नहीं दिखा सकता। बट लेट मी शो यू द लाइव वेबसाइट ऑफ अ डिफरेंट, लेट्स से कैसे आप पिक्सल है कैसे चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल है। अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो आप एक एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर, वो आपको बताएगा कि पिक्सल फायर हुआ है कि नहीं है। और दूसरा वे है कि आप फेसबुक एनालिटिक्स में जाके डीबग इवेंट्स में जाके आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो क्विकली आई विल शो इट टू यू ऑन अ डिफरेंट वेबसाइट, जहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं इस ट्रैकिंग को, राइट। जैसे मैंने बोला था कि आप पिक्सल हेल्पर, जैसे पिक्सल हेल्पर है यहाँ पे, वो आपका बताता है कि क्या ट्रैकिंग हुआ है। तो इफ आई लोड दिस पेज, इफ आई लुक एट दिस पिक्सल हेल्पर हियर, इट्स सेइंग दैट कि यहाँ पे क्राफ्टज़िला का पिक्सल फायर हुआ है और उसमें पेज व्यू हुआ है।
और उसमें व्यू कंटेंट हुआ है। उस कंटेंट में प्रोडक्ट देखा है हमने, कंटेंट आईडी ये है और वैल्यू ये है। अगर आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे पिक्सल दिखेगा और दिखेगा कि ये पिक्सल फायर हुआ था और अब की बार ऐड टू कार्ट हुआ था, व्यू कंटेंट नहीं हुआ था, ऐड टू कार्ट हुआ था। और उसमें ये सब डेटा जाते हैं कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं तो 3 का प्रोडक्ट आईडी जाता है और उन टोटल वैल्यू जाता है। 3828 का वैल्यू है तो यहाँ पे 3828 का पूरा टोटल वैल्यू जा रहा है और उसकी करेंसी जाती है। तो इस तरह फेसबुक आपको ट्रैक करता है। जैसे पेज व्यू है वो इवेंट हर पेज पे फायर होता है, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट फायर होते हैं। तो अगर मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, अब यहाँ पे अगर देखें अपन तो कौन सा अभी भी ऐड टू कार्ट है क्योंकि क्राफ्ट्सविला इसको ऐड टू कार्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा तो यहाँ पे शायद ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे परचेज का इवेंट फायर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिस तरह से आप फेसबुक का पूरा चेक कर सकते हैं कि आपका पिक्सल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। राइट, इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल हेल्पर इन योर क्रोम। दूसरा वे जो मैंने बोला था वो ये बोला था कि आप आपके इवेंट्स भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एनालिटिक्स डॉट फेसबुक पे जाइए और इवेंट डिबग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे इवेंट्स दिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मुझे अगर कंटेंट व्यू का कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं तो वो मैं इवेंट यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये कंटेंट व्यू का ये सब इवेंट आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका ट्रैकिंग सही हो रहा है कि नहीं। तो ये 2 तरीके हैं। अभी अपन अभी ट्रैकिंग का अपन ने देखा कि लाइव कैसे होता है। तो ये इस तरह से अपन ने सेटअप किया फेसबुक का पिक्सल। और आपका अभी मैं दोबारा से उधर जाता हूँ जहाँ पे सॉरी अबाउट दिस, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है बट वी आर बैक हियर। सो बेसिकली ये अपन ने देखा कि पिक्सल कैसे होता है और कैसे अपन इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें अपन ने अभी बहुत इम्पोर्टेंट वी अंडरस्टूड वी कि ये कैसे अपन कर सकते हैं। नाउ मोबाइल ऐप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मोबाइल ऐप में आपको मोस्ट लाइकली किसी डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें आपको फेसबुक का एसडीके आपके मोबाइल ऐप में डलवाना पड़ेगा और फेसबुक का ऐप बना के आपको फेसबुक का वो ऐप का आईडी उसको देना पड़ेगा और फिर वो आईडी से वो फिर आपका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो फर्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेट फेसबुक एसडीके इन योर मोबाइल ऐप। सेकंड स्टेप इज क्रिएट अ फेसबुक ऐप हियर। राइट, तो अगर अपन जाते हैं डेवलपर्स और facebook.com पे तो अपन जैसे मैं यहाँ पे डेवलपर्स और facebook.com पे जाता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये यहाँ पे आपको आपके ऐप जो आप फेसबुक में यूज़ करेंगे वो आपको ऐप यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ब्लॉच ऐप। तो ब्लॉच ऐप का अगर आप देखेंगे तो इसका आईडी ये है। राइट, ये आईडी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस आईडी से ही आपका पूरा ट्रैकिंग फेसबुक करेगा। इधर आप प्रोडक्ट्स में जाके आप बोल सकते हैं कि मुझे सेटअप करो एनालिटिक्स।
तो आपका एनालिटिक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी आप जैसे ये ऐप कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप न्यू ऐप क्रिएट करेंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए ऐप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ एनालिटिक्स का करेंगे तो हम यहाँ पे फॉर एवरीथिंग एल्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि हमें लॉन्च, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इस ऐप का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऐड एनी नेम हियर, दैट्स नॉट इशू। और फिर आप इसको किसी बिजनेस मैनेजर अकाउंट, तो आपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट आया उससे आपको कनेक्ट करना ज़रूरी है, वरना ये ऐप आपका डिसकनेक्टेड रहेगा और उसका एनालिटिक्स आपको उसमें नहीं दिखेगा। तो ये आप डिसकनेक्ट, आप कनेक्ट कर लीजिए और आपका एक ऐप आईडी क्रिएट कर लीजिए, राइट। तो अगर इस तरह से आप ऐप क्रिएट कर सकते हैं और आप उस ऐप आईडी को, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसी डेवलपर को देनी पड़ेंगी, जैसे कुछ कीज़ होती हैं और वो सब होता है, तो आप उसको उसको आप डेवलपर को देना पड़ेगा। बट ये इसके लिए अलग से अपन डिटेल में सेशन कर सकते हैं। बट द आइडिया हियर इज टू जस्ट टू शो यू द बेसिक्स कि आप फेसबुक ऐप क्या होता है और कैसे आप बनाते हैं, और आप उसको फिर आप इस ऐप आईडी और जो भी कीज़ हैं उनको आप डेवलपर को देके आप फेसबुक एसडीके में वो ऐप आईडी डलवा दीजिए, तो उससे मोबाइल ऐप में आपका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो इट्स ए इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप वो करें, और इस तरह से आप फिर ट्रैकिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ़ यू गो बैक, राइट, वेबसाइट पे पिक्सल क्रिएट किया, पिक्सल अपन ने देखा कैसे इंस्टॉल, कैसे अपन चेक कर सकते हैं। अपन ने देखा कि मोबाइल ऐप में अपन फेसबुक एसडीके और ऐप डलवा के आप इंटीग्रेट करके फिर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ये सब कहाँ पे दिखेगा, ये है दिखेगा आपको, ये सारे इवेंट्स, जो भी इवेंट जनरेट हो रहे हैं ट्रैकिंग के, वो आपको एनालिटिक्स और फेसबुक पे आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ जाइए, आप ये ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट कर देगा, और आपका जो पिक्सल और आपका जो ऐप है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप उस पिक्सल और ऐप के बारे में जो भी आपका इवेंट है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यू कैन सी ऑल द इवेंट्स, जो भी एक्टिविटी है कि आप, जैसे अपन जाएं कि क्या क्या इवेंट हुए हैं, तो यहाँ पे आपको वो इवेंट्स दिख जाएंगे। क्योंकि ये लाइव नहीं है, ये पिक्सल और ये ऐप लाइव नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई इवेंट दिख नहीं रहा है। पर कोई इवेंट आता तो यहाँ पे आपको सारे इवेंट दिख जाते हैं। और आप डीबग, जैसे मैंने बोला, डीबग भी कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट आया है। आप उसमें चूज़ कर सकते हैं कि मुझे ये इवेंट देखना है, और उसमें लाइव पे वो इवेंट दिखाता है कि it shows you live event, so which it is helpful for you to debug the your app tracking. So this is basically is how you see what's happening in tracking. ट्रैकिंग में क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अभी अपन ने देखा कि ट्रैकिंग कैसे करते हैं वेबसाइट एंड ऐप में, और उसको कैसे अपन चेक करते हैं और कहाँ पे अपन को उसका डेटा दिखेगा। अपन सेकंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, जो मैंने बोला था अपन डिस्कस करेंगे इसमें, विच इज़ फेसबुक कैटलॉग, कि व्हाट इज़ फेसबुक कैटलॉग एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। What is Facebook catalog? Facebook catalog is nothing but a collection of products. ये सिर्फ कलेक्शन है प्रोडक्ट्स का, क्योंकि फेसबुक इस कैटलॉग को यूज़ करता है टू शो प्रोडक्ट्स, राइट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिखाना है तो फेसबुक के पास डेटा होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है, राइट, उसका प्राइस क्या है, उसका नेम क्या है, उसका इमेज क्या है, राइट, तो उसकी कैटेगरी क्या है, वो सब डेटा उसके पास होना चाहिए। इसलिए ये कैटलॉग अपन को फेसबुक को देना पड़ता है। अब ये फेसबुक कैटलॉग कैसे आप यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे अपन वहाँ गए थे बिजनेस मैनेजर में, दोबारा वी गेट इनटू बिजनेस मैनेजर एंड दिस टाइम वी क्लिक ऑन कैटलॉग्स। पहले अपन ने पिक्सल्स देखा था, आप कैटलॉग्स देखेंगे और आप यहाँ पे जाके आप एक कैटलॉग
क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 कैटलॉग क्रिएट किए हुए हैं, ब्लॉच और शॉपिफाई। क्योंकि शॉपिफाई से मैं डायरेक्टली आया था तो शॉपिफाई ने एक प्रोडक्ट कैटलॉग ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, पर ये मैंने अपने आप क्रिएट किया है ब्लॉच। आप यहाँ पे ओपन इन कैटलॉग मैनेजर करेंगे तो आप उस कैटलॉग में चले जाएंगे and you can see all the products in that catalog. So you can start to see what product has been uploaded, and you can also add items. Now if you add the items here, you can add manually, right? Manually मतलब आप उस पे आपको सारा डेटा आपको डालना पड़ेगा, इमेज, नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट आईडी। ये कंटेंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आईडी प्रोडक्ट आईडी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, SKU होता है, प्रोडक्ट आईडी होता है, जो भी होता है वो उसके बेसिस पे ही फेसबुक को पता लगता है कि वो कैसे किसने क्या देखा है, राइट। फेसबुक के पास एक कंटेंट आईडी है और आपने ट्रैकिंग में वो कंटेंट आईडी, जब फेसबुक का जो पिक्सल फायर हुआ था व्यू कंटेंट में, तो एक कंटेंट आईडी भेजा था, वो कंटेंट आईडी और एक कंटेंट आईडी मैच करेगा तो फेसबुक को पता चलता है कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट देखा है और ये प्रोडक्ट को वो दोबारा दिखाएगा अगर उसने परचेज नहीं किया है। So you can add product here. You can also add through bulk upload, right? So for example, if you have a data sheet, a product upload sheet, you can upload your product here. You can also do it automatic. You can say schedule, right? You can say every hour, every day, upload from this particular location. So you can do one time upload. You can do schedule feed, which will keep on doing every day, or you can also use a Google Sheet where it can read from there, right? So if I say schedule feed, I will have to give my location. तो आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं, आपका जो भी लोकेशन है उस फाइल का वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जहाँ से फेसबुक उस प्रोडक्ट को रीड करेगा। तो ये जरा मेरा CSV फाइल है। ये CSV लेता है, TSV लेता है, XML लेता है, इसलिए एक्सेल को आपको CSV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर उस फाइल पे कोई यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। And then you can in the next screen you can set the time when you need to, you want daily, you will want it uploaded hourly, weekly, daily. You can choose and what time do you want it to sync, it will do that. यहाँ पे आप अपना करेंसी चूज़ करते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं कैटलॉग में उसका करेंसी क्या है, तो करेंसी आपको यहाँ पे चूज़ करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो अपलोड कर देगा और यहाँ पे आपके सारे आइटम्स दिख जाएंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने शॉपिफाई ने क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उनका एक आइटम ऑलरेडी उन्होंने अपलोड किया है। क्योंकि मैं शॉपिफाई से आया था, उन्होंने डायरेक्टली एक प्रोडक्ट यहाँ पे, जो प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा था आपको, वो प्रोडक्ट यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट है जो शॉपिफाई की वेबसाइट पे हमने देखा था, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका पूरा डिटेल यहाँ पर है, और जो अभी जो कंटेंट आईडी अपन बोल रहे थे वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस आईडी के बेसिस पे ही आपका पूरा ट्रैकिंग होता है। तो ये कंटेंट आईडी क्या है? ये कंटेंट आईडी यहाँ पे जो आपका जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो भी आप शॉपिफाई में देखेंगे कंटेंट आईडी, वो आपको वो कंटेंट आईडी है। तो शॉपिफाई पे अगर आप प्रोडक्ट्स में गए और आप गए तो ये जो प्रोडक्ट का ये जो आईडी है यहाँ पे, वो आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा, उसके बेसिस पे ही वो पूरा ट्रैकिंग करता है। तो ये है जो कैटलॉग जो फेसबुक में अपलोड करना होता है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। स्टेप को आप
इग्नोर मत कीजिए, इस स्टेप के बेसिस पे ही आपका पूरा कैटलॉग एडवर्टाइजिंग चलता है, क्योंकि ये फेसबुक इस कैटलॉग का इंफॉर्मेशन यूज़ करता है कि किसी को अपसेल करना है, क्रॉस सेल करना है कि रीमार्केट करना है, राइट। अपसेल का मतलब है कि उसने अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा तो क्या वो 800 रुपये का प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसको हम 800 रुपये के प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसको हायर प्राइस प्रोडक्ट दिखाएंगे। क्रॉस सेल का मतलब अगर उसने साड़ी खरीदी है तो हम उसको ज्वेलरी का दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो साड़ी खरीदने के बाद ज्वेलरी खरीदने का इंटरेस्ट हो। या फिर रीमार्केट करेंगे, रीमार्केटिंग जैसे मैंने बोला था कि अगर वो ऑलरेडी प्रोडक्ट कार्ट में डाल चुका है तो वो उसका इंटरेस्ट बहुत हाई है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, राइट। तो उसको फेसबुक वही प्रोडक्ट बार बार दिखाएगा कि ये आप खरीदो, तो वो रीमार्केटिंग होता है। तो इस तरह से वो फेसबुक ट्रैकिंग एंड कैटलॉग को यूज़ करके आपका परफॉर्मेंस आपका बूस्ट करता है एड्स का। तो ये आपका कोई Q&A है तो आप प्लीज़ यू कैन राइट इन द Q&A सेक्शन। मनोज, मिस्टर मिहिर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये कैटलॉग इसमें फेसबुक में डालना कंपलसरी होता है, या वो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मार्केटिंग में डालना चाहते हैं तो वो कैटलॉग पूरा नहीं डाल के सिर्फ वो 2 प्रोडक्ट या कुछ और तरीके से भी एडवर्टाइज कर सकते हैं क्या फेसबुक पे? हाँ, बेसिकली ये कैटलॉग डालना ज़रूरी नहीं है। फेसबुक में जैसे हमने पहले देखा था कि मल्टीपल टाइप ऑफ कैंपेन चलते हैं, उसमें से एक टाइप है कैटलॉग। पर आप अगर ई कॉमर्स करते हैं तो कैटलॉग बेस्ड मार्केटिंग फेसबुक में करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको हाई ROI देता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है, विदाउट कैटलॉग ऑल्सो यू कैन एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। There are other campaigns you can run, where you can actually just add static photos and static data and static URLs uh, uh, to basically create a campaign। तो उसमें फिर फेसबुक का जो ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस वाला है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। कैटलॉग होने से फेसबुक उसको रीमार्केटिंग बेटर करता है। तो आपका इफ़ यू हैव कैटलॉग बेस्ड मार्केटिंग इट विल बी हायर ROI, you will see better performance, and you will see better engagement with your customer, and you will be able to target different stages of a customer journey on a website or on an app। तो इसलिए कैटलॉग जरूरी है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेड है। और कुछ क्वेश्चन, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, हैप्पी टू आंसर। अब अपन चाहते हैं बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन पे। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप कंपनी का इन्फो डालते हैं। अगर आप किसी कंपनी में हैं और कंपनी का ऐड कर रहे हैं तो उस कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन जाता है, टैक्सेशन जाता है, उसका GST नंबर या कोई और टैक्स ID है तो GST या टैक्स ID number you have to put there, so that you can when the invoice is raised by Facebook they have proper GST number। एंड आप पेमेंट मेथड्स ऐड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज क्रेडिट कार्ड्स, तो क्रेडिट कार्ड आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, तो वहाँ पेमेंट मेथड डालते हैं। और फिर जो भी आपका खर्चा हुआ है उसके बेसिस पे आप जो भी इनवॉइस फेसबुक रेज करता है तो वो आपको इनवॉइसेस वहाँ दिखती है। सो दिस इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सो आई जस्ट शो इट टू यू। तो आप कहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, right? तो आप यहाँ पे जाइए और आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक आप बिलिंग है और एक आप, पहले आप बिलिंग देख लेते हैं। तो बिलिंग में आपको पूरा का पूरा जो भी इन्वॉइसेस हैं वो यहाँ दिखेंगे। आपको पूरा डेट कब बिल हुआ, क्या ट्रांजेक्शन ID था, किस पेमेंट मेथड से आपको पे किया, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप आपके अकाउंट्स का पूरा पेमेंट सेटअप कर सकते हैं और उस अकाउंट का आप पूरा
टैक्सेशन और वो सब भी आप डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो हियर एंड इफ यू क्लिक ऑन ऐड अकाउंट्स, राइट, तो आप यहाँ पे आप बिजनेस नेम डाल दीजिए जो आपका कंपनी नेम है. फॉर एग्जाम्पल मैं डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे डालूंगा और मेरा एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे. तो एड्रेस आप यहाँ डाल दीजिए, राइट. और फिर आप कंट्री डाल दीजिए. कंट्री इम्पोर्टेंट है, उसके बेसिस पे फेसबुक को पता चलता है कि वो क्या दिखाना है. तो आप यहाँ पे फिर जीएसटी नंबर डाल दीजिए. तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आप डाल दीजिए और फिर आप इसको सेव कर दीजिए, राइट. तो दैट्स हाउ यू सेट अप योर 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 बिलिंग सेक्शन. एंड यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका पेमेंट सेटिंग्स है, तो आप यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं. आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन कौन सा पेमेंट मेथड आप डालना चाहेंगे. वो आपको यहाँ पे ऐड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप फेसबुक का कोई आपका क्रेडिट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो आप डेबिट कार्ड डालने के लिए यहाँ पे जाइए तो आपको यहाँ पे पूरा आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप क्रेडिट कार्ड डालना है. इस तरह से आप आपके पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं. ये एक तरीका है पेमेंट मेथड ऐड करने का. दूसरा तरीका है कि आप अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में जाइए तो वहाँ पे भी आप एक बिजनेस मैनेजर लेवल पे ही पेमेंट मेथड डाल सकते हैं जो सारे ऐड अकाउंट्स में विजिबल रहेगा. सो फॉर एग्जांपल इफ यू ऐड यू कैन go to payment section here and you can add your payment method here also, and whatever payment method you want you can add it. It will show up here, and that payment method you can associate with any ad account. And आप उस एड अकाउंट जाके आप ऐड एक्सेप्ट करेंगे तो आपको पेमेंट मेथड आप डाउनलोड ऐड कर सकते हैं. तो ये एक है जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है. हमने दो सेक्शन यहाँ पे देखे. एक तो बिलिंग का सेक्शन है जो आप यहाँ से बिलिंग में गए, और एक आपका सेटिंग्स का सेक्शन है, ऐड अकाउंट का पेमेंट का सेक्शन और कंपनी इन्फो सब डालने का सेक्शन है. वो आप ऐड अकाउंट सेटिंग्स में जाके आप जा सकते हैं, या फिर आप बिलिंग में जाके पेमेंट सेटिंग्स में जा सकते हैं. दो तरीके हैं वहाँ पहुँचने के. So this is how you basically set up your ad account, payment setting, billing, tracking. तो हमने आज बहुत कुछ सीखा है. इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी ये फेसबुक का डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको पूरी तरह समझना है तो ये सेक्शंस और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और पेजेस एंड इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है समझना. सो जस्ट टू रिकैप, हमने क्या देखा? हमने देखा कि फेसबुक का मेजरमेंट ट्रैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. ट्रैकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द हार्ट ऑफ हाउ द फेसबुक वर्क्स, कि वो मेजर करेगा, प्रोफाइलिंग करेगा, फिर टारगेट करेगा और इस तरह से परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगा. डेटा फ्लो कैसे होता है? डेटा फ्लो में ऐप का एचडीके और पिक्सल के थ्रू पूरा एनालिटिक्स में जाता है और फिर एड यूनिट के थ्रू जाके उसका पूरा एक लूप बन जाता है जिससे फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है. ये कौन कौन से इवेंट्स हैं? पेज व्यू, सर्च, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, ये सब चीज़ें हैं जो आप करते हैं वेबसाइट पे, वो सब फेसबुक ट्रैक करता है. फेसबुक कैसे ट्रैक करता है? पिक्सल और ऐप एचडीके और ऐप आईडी के थ्रू वो ट्रैक करता है मोबाइल ऐप. ऐप पिक्सल क्या है? पिक्सल एक नंबर है जो हमने देखा था कैसे जनरेट करते हैं, शॉपिफाई में कैसे जनरेट करते हैं वो भी देखा था. एंड देन व्हाट टाइप ऑफ डेटा विच वेबसाइट गिव्स टू फेसबुक, राइट, वो सब डेटा हमने चेक किया. कैसे आप चेक करते हैं पिक्सल सही इंस्टॉल्ड है? तो यू कैन यूज़ क्रोम एक्सटेंशन फेसबुक पिक्सल हेल्पर. तो आप क्रोम में एक एक्सटेंशन आप सर्च करेंगे, वहाँ सर्च कीजिए फेसबुक पिक्सल हेल्पर, उसको इंस्टॉल कीजिए क्रोम में, तो फिर आपको वो दिख जाएगा उधर in the top left part, and then you can use that to track the pixel, or you can go to analytics.facebook.com और वहाँ पे इवेंट डिबगिंग में आपको वो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. ट्रैक कैसे करेंगे मोबाइल ऐप में? you have to install SDK and app,
फिर आप उसको इंटीग्रेट कीजिए। हमने देखा कि कैसे एक ऐप आईडी बनाना पड़ता है, वो ऐप आईडी developers.facebook.com पे जाके आप बना लें। एंड कहाँ पे सारा पूरा जो कुछ हो रहा है वहाँ का, इसकी एनालिटिक्स कहाँ दिखेगी, वो दिखेगी आपको एनालिटिक्स और facebook.com। और फिर हमने देखा कि कैटलॉग क्या है, कैटलॉग का इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट ए कैटलॉग। यू कैन अपलोड कैटलॉग मल्टीपल वेज। अगर आप शॉपिफाई हैं तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। शॉपिफाई पे हम अलग से एक सेशन लेंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि शॉपिफाई को आप कैसे सेटअप करेंगे और शॉपिफाई पे वेबसाइट कैसे बनाएंगे। उस सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैटलॉग और पिक्सल को कैसे लिंक करेंगे। बट यू कैन डू इट फ्रॉम शॉपिफाई। यू कैन गो टू फेसबुक, और वहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं और मैनुअली अपलोड कर सकते हैं या फिर बल्क अपलोड कर सकते हैं। और फिर हमने लास्ट देखा कि बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन कहाँ होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड कैसे डालते हैं, कंपनी का इन्फॉर्मेशन कहाँ डालते हैं, वो सब किया था। So this pretty much the end of this session. I hope you liked it. The next sessions are more interesting, challenging. It's going to be a lot more fun because हम उसमें अब लाइव एड्स क्रिएट करेंगे। हमारे पास पूरा समझ आ गया है कि व्हाट इज़ फेसबुक ऐड, कैसे क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्रैकिंग क्या है, आपका कैटलॉग क्या है। अब अपन डायरेक्टली जंप करेंगे नेक्स्ट सेशन में लाइव एड्स में। ऑडियंसेस क्रिएट करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फिर हम लास्ट सेशन में उस जो भी हम ऐड रन कर रहे हैं उनका कैसे हम मैट्रिक्स क्या है, उनको कैसे मेजर करते हैं, वो सब अपन देखेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेशन। Thank you everyone. If you need more help in Facebook ads, you can reach out to Brahman at Plotch.ai. Plotch helps people set up their Facebook campaigns and ad accounts. Thank you everyone. If you have any questions, I'm happy to answer right now. Okay, since there's no questions, I'll wrap up here. Thank you everyone, and I hope to see you next time. In the next Wednesday, we'll have the next session, and the relevant links will be shared to you for this webinar. Thank you.